Hello children, welcome to your maths video class. Children, I'm sure you all are practicing the exercises that we are discussing in video classes. Children, it is very important that you practice the exercise because in mathematics, practice is very important. There's nothing to learn, only practice will make you perfect. Children, you know that we are doing chapter 12, unit 12 you can say, that is measurement of capacity, that we have started in the previous video. Before that we did other measurement topics like measurement of length, measurement of mass, and now it is measurement of capacity. Children, all these measurement units are very important because they are related to our daily life. In our daily life, whatever we purchase, whatever we buy, we pay as per the measurement of that particular thing, whether it is measurement of length, whether it is measurement of weight, or it is measurement of capacity. So all these three topics are very important, and I hope you all are practicing also. Children, in today's video I will do addition of capacity. Before that, I have explained you what capacity is. Children, capacity in this unit is related to the capacity in terms of liquid. Capacity means the amount of liquid a container can hold in it. That is the capacity of that container. Amount of liquid that can a container, a vessel hold is the capacity of that container. And different containers have different capacity. If a container is big, it will have more capacity, and if it is small, it will have less capacity. Now, what is the importance of having standard unit of measuring capacity? That also I have explained to you through an example. There is a bottle of water. There is a bottle, and three children filled that same bottle using different containers. Okay, Amit used glasses. Amit used glass to fill that bottle, and he filled 3 glasses of water in that bottle. To fill that bottle, he used 3 glasses of water. To fill the same bottle, Kavita used 5 cups of water. To fill that same very bottle, she used cup, and that took 5 cups of water to fill that bottle. Then Saurav, he used mug, and he filled that same bottle with 2 mugs of water. The bottle is same, but the object, the containers which are used to fill that bottle were different. Glass, cup and mug. All were correct in their own place. If Kavita says that the bottle contains 5 cups of water, she is correct. If Saurav says the bottle contains 2 mugs of water, then also it is correct. And when Amit says that the bottle contains 3 glasses of water, he is also correct. But we are getting 3 different answers. None of the answer is same, but all the answers are correct. So to have uniformity in the answer, so that everybody gets the same answer when we are measuring the capacity of a particular bottle or container, we should get same answer. If anyone fills that bottle, the answer should be same. For that uniformity, we need a standard unit of measuring capacity, and the standard unit of measuring capacity is liter and milliliter. Agar amount liquid ज़्यादा है, we measure in liter, and if it is less, we measure in milliliter. If we are talking about a bottle, it may hold a liter of water, 1 liter or more than 1 liter of water.
of water, and if we take a cup, it will hold milliliters. It will hold liquid in milliliters. Liquid, I have explained you, liquid, anything that flows, anything that takes the shape of the container is liquid, like milk, water, juices, then syrups. All these comes in the category of liquid. Oil, all sorts of oil comes in this category. And the characteristic of liquid is that it takes the shape of the कंटेनर. जिस कंटेनर में डालेंगे वैसे ही उसका शेप हो जाएगा, एंड इट फ्लोज ऑल्सो. सो द कैपेसिटी ऑफ अ कप इज लेस देन द कैपेसिटी ऑफ एनी बॉटल, और कैपेसिटी ऑफ स्पून इज लेस देन एनी बोल. एक बोल में ज़्यादा लिक्विड आएगा कंपेयर टू अ स्पून, इजंट इट? तो जितना उसकी कैपेसिटी होगी, अब हमें देखना है कि अगर छोटा है कोई चीज़, अगर कंटेनर छोटा है, इसका मतलब उसके अंदर जो लिक्विड होगा वो मिलीलीटर में होगा, और अगर कंटेनर बड़ा है तो उसकी कैपेसिटी लीटर्स में होगी. And I have told you in the previous video that in our surrounding we find many such things. आप कभी वाटर बॉटल खरीदते हो, बाहर जाते हो, पीने का जो पानी खरीदते हो, उस पर मेजर लिखा होता है, 1 लीटर 2 लीटर बॉटल लिखा होता है. When you purchase any cough syrup, when you purchase any eye drop, there also it is mentioned in ml, मिलीलीटर में उसमें लिखा होता है. आई ड्रॉप कभी लीटर्स में नहीं आता है, isn't it? फिर आपको बताया था मैंने, जो सिरिंज होता है, जो आपको इंजेक्शन लगता है सिरिंज, उसमें भी मिलीलीटर्स में होता है, लीटर्स में किसी को इंजेक्शन नहीं लगता है. तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिलीलीटर में ही अवेलेबल होती हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिलीलीटर और लीटर दोनों में अवेलेबल होती हैं. जो लोशंस होते हैं, जो क्रीम्स होते हैं, वो मिलीलीटर्स में भी मिलते हैं, और बड़ी बॉटल लेंगे तो वो लीटर में भी अवेलेबल होते हैं. जूसेस जो होते हैं वो मिलीलीटर वाले बॉटल में भी होते हैं और लीटर वाले बॉटल्स में भी होते हैं. मिल्क ऑल्सो इट यू कैन गेट इन मिलीलीटर एंड यू कैन गेट इन लीटर्स. ऑयल, ये सारी चीज़ें आपको लीटर और मिलीलीटर दोनों में अवेलेबल है. बट देयर आर सर्टन थिंग्स दैट विल बी अवेलेबल ओनली इन मिलीलीटर, एज आई हैव टोल्ड यू, लाइक आई ड्रॉप्स है, वो मिलीलीटर में ही होगा, या इंक की बॉटल होती है जो, वो मिलीलीटर्स में होती है. तो ये, या कोई जो एसेंस होते हैं वो मिलीलीटर्स में होते हैं. फूड कलर्स जो मिलते हैं लिक्विड, वो मिलीलीटर्स में होते हैं. तो this we have to find out in our surrounding, which things are available in liters and which things are available in milliliters. Okay, now we are going to do addition of capacity. आज हम करेंगे, ठीक है? तो मैं अब आपके साथ वो ही स्टार्ट करने जा रही हूँ, addition of capacity. And in the previous video I have also told you about different containers. There are fixed containers also that are used for measuring liquid. जैसे जो मिल्कमैन होते हैं, जो दूध वाले भैया होते हैं, उनके पास आपने देखा होगा एक कंटेनर होता है जिसका शेप ऐसा होता है. मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ड्रॉ करके बताया था, समथिंग लाइक दिस, और उसमें ऐसा बना रहता है. और ये जो ऑयल बेचते हैं ना, उनके पास भी इसी तरह का कंटेनर होता है. जो कुकिंग ऑयल अगर बेचते हैं, पैकेटेड में नहीं बेचते हैं, उनके पास भी ऐसा कंटेनर होता है, और उसके ऊपर यूनिट लिखा होता है, वो लीटर का है या मिलीलीटर का है. 1 लीटर में आता है, 500 मिलीलीटर का आता है, 200 मिलीलीटर का आता है, 100 मिलीलीटर का आता है, 50 मिलीलीटर का भी आता है. ऐसा ही आप एक कंटेनर होता है जो पेट्रोल पंप पे आप देखते हैं, जो मतलब अपार्ट फ्रॉम होस, जो पाइप से तो भरते ही हैं पेट्रोल व्हीकल्स में, उसके अलावा एक कंटेनर होता है जो थोड़ा जग के जैसे दिखता है, उसमें से चोंच बना होता है, एंड इट इज समथिंग लाइक दिस. आपको मैंने पिछले वीडियो में ड्रॉ करके बताया था, और यहाँ पे उसका पकड़ने के लिए बना रहता है. इस तरह का आपको पेट्रोल पंप पे देखने को मिलता है. तो ये कुछ कंटेनर्स स्पेसिफिकली आते हैं टू मेजर लिक्विड. और आपने देखा होगा एक और चीज देखिए कि आप कफ सिरप जब पीते हैं ना, तो उसके साथ भी एक ना ढक्कन जैसा मिलता है, और उस पे भी मिलीलीटर लिखा होता है. हैव यू सीन दैट? ओके, आई विल शो यू दैट. मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसा ढक्कन होता है, उस पे लिखा रहता है. चिल्ड्रन, दिस इज एन एंटासिड, और इस पर देखिएगा
इसकी कैपेसिटी है, इस बॉटल की कैपेसिटी है 170 ml. इफ यू कुड सी इट इज रिटन देयर 170 ml. तो ये इसमें लिक्विड है, दैट इज एंटासिड, जिसको आप डाइजिन वगैरह बोलते हैं, और इसमें जो लिक्विड है और इसकी कैपेसिटी कितनी बताई मैंने 170 ml है. और इसके साथ एक ये मिलता है, और इस पर भी देखिए कैपेसिटी लिखी होती है. इट्स कैपेसिटी इज 10 ml. वो छोटा छोटा लिखा दैट आई कैन नॉट शो यू, बट ये इस पर आप देखेंगे, इस पर भी 10 ml या 5 ml लिखा रहता है. ठीक है, तो ये आप अपने घर में अगर आपके पास ये बॉटल होगी देन यू कैन चेक इट. ओके, नाउ लेट्स डू एडिशन. एडिशन कैपेसिटी. चलिए अब इसको हम ऐड करने वाला आज सीखते हैं. सेम जैसा कि आपने पहले एडिशन सीखा हुआ है, जैसे पहले आपने जो नॉर्मल आप एडिशन करते थे, एडिशन विद बोरोइंग एंड विदाउट बोरोइंग, वैसा ही एडिशन है. बस फर्क वही है, जैसा मैं आपको हमेशा बताती हूँ, यूनिट का. आपको यूनिट का ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका बिल्कुल नॉर्मल जो आप जैसा आपने सीखा हुआ है एडिशन, इट इज एग्जैक्टली द सेम एक्सेप्ट फॉर द यूनिट. आपको यूनिट का ध्यान रखना है. यू हैव टू ऐड लीटर विद लीटर एंड मिलीलीटर विद मिलीलीटर. मतलब जो नंबर्स लीटर में होंगे उनको लीटर के साथ ऐड करना है, जो नंबर मिलीलीटर्स में हैं उनको मिलीलीटर्स के साथ आपको ऐड करना है. ओनली दिस इज द मेन डिफरेंस. बाकी सारा कुछ पहले की एडिशन की तरह ही होता है इसमें, बस यूनिट का आपको केयर करना है. चलिए हम कुछ करके आपको मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगी, फिर हम जो सम्स दिए हैं आपकी बुक में उसको भी हम करेंगे. हम ऐड कर रहे हैं पहले मिलीलीटर्स को. ठीक है, ऐड 500 मिलीलीटर एंड 357 मिलीलीटर. ऐड 500 ml and 357. ठीक, ये हमारा, इसको आपको ऐड करना है. 500 ml and 357 ml. ml stands for milliliter, that I told you. Now let's add. Again, the thing that I always repeat is about the place and place value, जो कि हमेशा important होता है. जब भी सिंगल डिजिट नंबर है, that is the place of that number will be ones. If there are two digits, two numbers, two digit number है, तो हम जब करते हैं तो we move from राइट टू लेफ्ट. तो ये हो गया, जो फर्स्ट नंबर होगा वो वंस होगा और सेकेंड नंबर जो होगा वो टेंस होगा. एंड इफ देर आर थ्री नंबर्स, इफ अ नंबर इज अ 3 डिजिट नंबर, तो फर्स्ट डिजिट जो होगा वो वंस है, नेक्स्ट जो उसके होगा वो टेंस होगा, और उसके नेक्स्ट जो होगा वो 100 होगा. भले ही नंबर दिखने में सेम हो, लेकिन प्लेस के अकॉर्डिंग फिर उनकी वैल्यूज अलग अलग होती है. अगर 3 नंबर्स हैं हमारे पास 555, इट इज अ 3 डिजिट नंबर, तीनों ही नंबर 5 हैं, बट देयर वैल्यूज आर डिफरेंट, है ना. क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये वंस है, ये टेंस है और ये 100 है. तो ये वाला 5 सिर्फ 5 है, ये वाला 5 क्योंकि टेंस की पोजीशन पे है, 5 टेंस है, मतलब 5 टेंस है, मतलब 5 टाइम टेंस. तो कितना होगा? 5 टेंस मतलब 50. तो ये वाला 5 50 है और ये 5 क्या है? हंड्रेड्स है. 5 हंड्रेड्स मतलब जो 100 नंबर है वो 5 टेंस है. तो क्या हो गया? 500. तो ये हो जाएगा 500. ये 500, ये 50 और ये 5, तीनों 5 है, लेकिन इनकी वैल्यूज अलग अलग हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में, द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर. फेस वैल्यू भले सेम है, लेकिन प्लेस वैल्यू अलग होने से
पूरा सम चेंज हो सकता है। ये ऐड करते समय या सब्ट्रैक्ट करते समय आपको हमेशा इस प्लेस वैल्यू का भी बहुत ध्यान रखना है। मैं बताऊंगी आपको कि क्यों ऐसा है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। आई विल रिपीट दैट व्हेन वी कम अक्रॉस सच क्वेश्चन। अभी हम इसको ऐड करते हैं। वंस के नीचे वंस रखा है, टेंस के नीचे टेंस और हंड्रेड के नीचे 100। ओके, यहाँ पे वंस कुछ नहीं है, टेंस कुछ नहीं है, 5 क्या है 100 है, तो इसको हम बोल रहे हैं 500। पढ़ रहे हैं 500। ये वंस है 7, ये क्या है टेंस है, 5 टेंस इज 50 और ये 3 इज 100, तो ये 357। ओके, नाउ लेट्स ऐड 0 plus 7. 0 plus 7 is 7. 0 plus 5 is 5. And 5 plus 3. Now you have to add 3 to 5. 5 में आपको 3 add करना है. So what will you get? 8. So our answer is 857. But this is not complete answer. Why this is not complete answer? Because I have not written the unit. Now it is complete. 857 milliliter. Got it? Now the answer is complete. Let's take another liter का ले लेते हैं हम. 34 liter and 17 liter. And 34 liter and 17 liter. Now we have 2-digit number. As you can see, we have 2-digit numbers. Ones, tens. Ones, tens. And I have written ones below ones and tens below tens. Ones वाले को ones के साथ और tens वाले को tens के साथ हम ऐड करेंगे. 7 plus 4. 7 plus 4 ऐड करना है. 7 is bigger number. Keep 7 in mind and put 4 on fingers and start counting. What we will get? 11. Yes. पर 11 का हम पूरा 11 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 2 डिजिट में आंसर आएगा, 2 डिजिट है तो ये अब अगेन 2 डिजिट है तो ये वंस है और ये टेंस है. वंस को हम वंस के नीचे लिखेंगे और टेंस को टेंस के कॉलम में डाल देंगे. ठीक है, अब इसको प्लस करते हैं. 3 plus 1 is 4. 4 plus 1 is 5. We got 51, but the answer is incomplete without writing the unit. 51 liter. Now answer is complete. Answer is 51 liter. Okay. Now we will do the questions that are given in your जो और questions दी हैं उसको करेंगे हम. Will do that. एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले जिसमें कि लीटर और मिलीलीटर दोनों ही हैं, फिर उसके बाद हम सम्स को करेंगे. ठीक है, लेट्स टेक एग्जाम्पल. ऐड करना है आपको 3 लीटर 250 ml. 250 ml एंड उसके साथ आपको ऐड करना है 6 लीटर 325 ml. 325 ml. ओके, अब इसको आप ध्यान से देखिए. 3 लीटर 6 लीटर 250 मिलीलीटर एंड 325 मिलीलीटर. मतलब कि हमारे को ऐड करना है 3 लीटर एंड 250 मिलीलीटर के साथ हमें क्या ऐड करना है 6 लीटर 325 मिलीलीटर. ओके, सो हियर यू कैन सी लीटर का यूनिट भी है, मिलीलीटर का यूनिट भी है. इधर भी आप देख लेंगे लीटर का यूनिट भी है और मिलीलीटर का यूनिट भी है. नाउ लेट्स अरेंज दीज नंबर्स. इसको अब हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे. तो चलिए अरेंज करते हैं. 3 लीटर 250 मिलीलीटर
उसको मिलीलीटर के नीचे ही लिखेंगे। अब ये मिलीलीटर के साथ मिलीलीटर और लीटर के साथ लीटर, वी कैन नॉट चेंज इट, इसको चेंज नहीं करना है। लीटर वाला लीटर के साथ ऐड होगा और मिलीलीटर वाला मिलीलीटर के साथ ऐड होगा। गॉट इट? अब हम इसको ऐड करते हैं। 0 plus 5, 0 plus 5 is 5, 5 plus 2 is 7, 3 plus 2 is 5, 575। हमारा आंसर ये आया 575, बट ये क्या है? मिलीलीटर है। 575 मिलीलीटर है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब मिलीलीटर वाला हमने ऐड कर दिया। नाउ वी विल ऐड द लीटर्स। 6 plus 3 या 3 plus 6। तो बिगर नंबर को माइंड में रखिए, स्मॉलर नंबर को फिंगर में रखिए एंड स्टार्ट काउंटिंग। बिगर नंबर हमारा क्या है? 6 है, तो वो माइंड में है। अब उसके आगे से 6 के आगे से 3 नंबर और गिनिए। 7, 8, 9। You will get 9. Answer is 9 liter and 575 milliliter. 9 लीटर एंड उसके साथ जो मिलीलीटर है 575 मिलीलीटर। इनको ये हमारा आंसर है। ठीक है, नाउ वी विल डू द क्वेश्चंस, द सम्स दैट आर गिवन इन द बुक। नाउ लेट्स डू द सम्स। And the question is 328 ml plus 250 ml. 328 ml plus 250 ml. Now, children, you can see both the numbers have same unit. दोनों नंबर का जो यूनिट है वो सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है ना? दोनों ही मिलीलीटर्स में है। तो सिंपली अब हम इनको ऐड करेंगे। 8 plus 0, 8 plus 0 is 8 only, because when we add 0 to any number, the number remains same. So we will write 8. Now next number is 5 plus 2. 5 plus 2 is 7, and 3 plus 2. 3 plus 2 is 5. So answer is 578. But this is not complete answer because I have not written the unit. So I will write here ml. 578 ml. Okay. Next question. 406 ml plus 373 ml. Now again you can see the units are same. Both the numbers are ml. Milliliters हैं दोनों ही, तो milliliter is added to milliliter. 3 digit numbers है। 600, ये 6 क्या है? 1s है। 10s में हमारे पास कुछ नहीं है, 0 है, and 4 is 100. Here 3 is 1s, 7 is 10s, and the third जो 3 है वो थर्ड नंबर जो है 3 वो 100 है। मतलब दो नंबर हमारे पास 3 है, लेकिन दोनों की वैल्यूज अलग अलग हैं। ये 1s है और ये 100s है। 3 को हम 100 बोल रहे हैं और ये क्योंकि 1s है इसलिए 1s ही रहेगा। Now let's add 6 plus 3. 6 plus 3 is 6 को माइंड में रखिए, 3 को फिंगर पे रखिए और जो माइंड में नंबर होता है उसके आगे से वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दैट नंबर ऑनवर्ड्स।
तो माइंड में हमारे 6 है, 6 ऑनवर्ड्स आप काउंट कीजिए 3 तक, 7, 8, 9 and our answer is 9. Now 0 plus 7 and we know that whenever 0 is added to any number, the number remains same. So here we will get 7. 4 plus 3. So again keep 4 in mind and start counting from 4 onwards till 3. तो 4 के आगे से 3 नंबर तक गिनिए, 5, 6, 7. Answer is 7. So 779 milliliter ml. 779 ml is the answer. Got it? Let's do another. Another one is 28 liter plus 41 liter. Sorry, 41. 41 liter. Now let's add this. अब इसको हम ऐड करते हैं, ठीक है. 8 plus 1. 8 plus 1 is 9. 4 plus 2. 4 plus 2. This is a very simple calculation. 4 plus 2, you know, it is 6. So 69. Now here you can see that unit is changed. अब तक हमने milliliter किया था, but here it is liter. So we will write L. 69L. 69L मतलब 69 liter. Got it? Next. इसके नीचे ही कर लेते हैं. 59 liter plus 24 liter. 59 liter plus 24 liter. Again we have the unit लीटर. अब हमारे पास लीटर वाला ही यूनिट है, तो इसको चेक कर लेते हैं. 9 plus 4. 9 is bigger number, keep that in mind. 4 is smaller number, keep it on finger. अब 9 onwards, 9 के आगे से गिने. 10, 11, 12, 13. आपका ऐड करने में कितना आएगा? 13. Now we have 2-digit numbers. So out of these 2-digit numbers, one is ones, another one is tens. Ones को हम ones के नीचे लिखेंगे और tens को हम tens के कॉलम में डाल देंगे, ठीक है. Now let's add. 5 plus 1. 5 plus 1 is 6. 6 plus 2 is 8. 6 plus 2 कितना होता है? 8 ही होता है ना. We will write here 8. Answer is 83. But again, this is not complete without writing the unit. तो मुझे यहाँ पे यूनिट डालना पड़ेगा. क्या यूनिट है इसका? लीटर. Answer is 83 लीटर. ठीक है, 83 हमारा आंसर आ रहा है. आई होप ये आपको समझ में आ रहा है पूरा, है ना. आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है. Now let's take one more question. एक और देख लेते हैं, and that is 63 liter and we will add 87 liter. ठीक है, ये दोनों को हम ऐड कर लेते हैं. 63 liter and 87 liter. Now 7 plus 3. 7 is bigger number, keep that in mind. उसको अपने माइंड में रखिए और 3 को फिंगर पर ले लीजिए. अब 7 के आगे से काउंट करना शुरू कीजिए. 8, 9, 10. अगेन वी गॉट 2 डिजिट. अब इस 2 डिजिट में ये वंस है और ये टेंस है, तो वंस वाले को हम वंस के नीचे लिखेंगे और टेंस वाले को टेंस के कॉलम में लिखेंगे. ओके. नाउ 8 plus 6 पहले कर लेते हैं. विच इज बिगर?
8. Keep 8 in mind and 6 on fingers. 6 को फिंगर पे ले लीजिए, 8 को माइंड में ले लीजिए और 8 के आगे से काउंट कीजिए. 8 के आगे से उसमें 6 तक और गिनिए. 9, 10, 11, 12, 13, 14 और उस 14 में ये एक 1 जो है उसको भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15. सो वी राइट हियर 15. भले यहाँ पे 2 डिजिट नंबर आया 15, पर क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक और कॉलम नहीं है तो हम पूरा 15 का 15 लिखेंगे. सो हमारा आंसर आता है 150 एंड द यूनिट इज लीटर. 150 लीटर्स. ठीक है, आंसर इज 150 लीटर्स. आई होप ये एडिशन आपको ग्रेजुअली समझ में आ ही गया है. बिल्कुल नॉर्मल एडिशन की तरह ही है, सिर्फ आपको यूनिट पे ही थोड़ा सा फोकस करना है. ओके, और भी कई सम्स हैं बट दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर सम्स. थैंक यू.